Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. So today I will discuss the purchase procedure of government e-marketplace. Previous time already I have discussed about the GeM, but in this video I will discuss briefly the purchase procedure on GeM. Definitely this video would be interesting one. It would be very useful for principal exams, different types of departmental promotion exams, and official people in central government, state government, public sector undertakings, local bodies, etc. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Also, you see the description box, I have given my Telegram channel link. Please click on it and join my Telegram channel so that you can avail all the videos on administration and finance, and these videos would be very useful for you for forthcoming principal examinations and other departmental examinations. So now I am going to discuss purchase procedure on GeM portal, government e-marketplace portal. We know that DGS&D, Directorate General of Supplies and Disposal, replaced by GeM SPV. So now GeM SPV, Government e-marketplace special purpose vehicle, control the GeM portal. It is the responsibility of GeM SPV to make periodic advertisement related to goods and services available on GeM, credential of registered suppliers, number of registered suppliers, terms and conditions to procure the goods and services from the GeM portal, purchase procedure, payment procedure, etc. So, first one, common use goods and services available on GeM are required to be procured mandatorily through GeM as Rule 149. We know that Rule 149 of General Financial Rule basically emphasized that common use goods and services available on GeM are required to be procured mandatorily through the GeM portal. Basically, government procuring entities, it is compulsory for them, it is mandatory for them to purchase common use goods and services from the GeM portal. If the goods and services are not available on the GeM portal, then they generate government e-marketplace availability report and past purchase summary with ID and ensure that the particular commodity and service is not available on GeM, and the bid can float outside of the GeM. Clear? And when the bidding documents uploaded in the website
of the concerned departmental website or central public procurement portal or JAM portal, at that time also ID must be uploaded. So this procedure already I have discussed in my previous video. So from this in rule 49 it is clearly mentioned that common use goods and services available on JAM must be procured by the government procuring entities from the JAM portal, and it is compulsory and mandatory for them. If it is not available, then they can float the bids outside of the JAM and procure the goods and services. Next one, JAM SPV will ensure adequate publicity including periodic advertisement of the items to be procured. ये भी डिस्कस में कर चुका हूँ. तो जो JAM SPV है वो पीरियडिक एडवर्टाइजमेंट करता है कि what type of goods available, what type of services available, how many registered suppliers are there, what is the purchasing procedure, what is the payment procedure, what are the terms and conditions to procure the goods and services from the JAM portal, credential of the registered suppliers, etc. So it is very important one. Next one, the procurement of goods and services by ministries or departments will be mandatory for goods or services available on JAM. जो भी goods and services JAM पोर्टल में है ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटीज़ के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लोकल बॉडीज़, उनके लिए मैंडेटरी है वो गुड्स को प्रोक्योर करेंगे JAM पोर्टल से. यदि पर्टिकुलर गुड और पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल नहीं है तब आउटसाइड ऑफ द JAM bids must be floated. Through bidding the respective goods and services can be procured by the respective department or ministry. मगर अभी जो रूल है, यदि JAM पोर्टल में एक पर्टिकुलर कमोडिटी अवेलेबल नहीं है, कि पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल नहीं है, तब एक आईडी जनरेट होगा. JAM पोर्टल से एक आईडी जनरेट होगा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अवेलेबिलिटी रिपोर्ट एंड पास्ट परचेज समरी विथ आईडी एक जनरेट होगा. और जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा तब वो आईडी को भी अपलोड किया जाएगा. तो जिसको बोलते हैं JMR, पास्ट परचेज समरी. क्लियर? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अवेलेबिलिटी रिपोर्ट एंड पास्ट परचेज समरी उस विथ आईडी जनरेट किया जाएगा JAM पोर्टल से. और इससे इंश्योर किया जाएगा कि पर्टिकुलर कमोडिटी सर्विस अवेलेबल नहीं है JAM पोर्टल से, तब वो आउटसाइड से बिडिंग से उसको प्रोक्योर किया जाएगा. राइट? अभी नेक्स्ट चलेंगे. अभी देखेंगे क्रीडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, we know that JAM, it is the responsibility of the JAM SPV to check the credentials of the suppliers. क्या क्या JAM SPV क्या चेक करेगा? Past experience of the suppliers, their financial status, their post sales service, guarantee and warranty conditions, quality of goods and services, delivery the goods and services. तो ये इंफॉर्मेशन JAM SPV कलेक्ट करेगा. इट मीन्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स related to the credential of suppliers. So it is the responsibility of the JAM SPV to check the credential of the suppliers. उसमें क्या क्या है उसको डिस्कस कर दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी चलेंगे नेक्स्ट. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज ए कंप्लीटली पेपरलेस, कैशलेस एंड सिस्टम ड्राइवन ई मार्केट प्लेस.
that enables procurement of common use goods and services. एक्चुअली जेम पोर्टल से जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर किया जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर पेपरलेस, कैशलेस एंड सिस्टम ड्राइव इन ई मार्केट प्लेस। पेमेंट जो होगा डिजिटाइजेशन पेमेंट होगा और ऐसा पेपरलेस होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि रिकॉर्ड मेंटेन होगा। क्लियर, थ्रू ऑनलाइन गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटीज प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम पोर्टल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो अभी चलेंगे जेम परचेज प्रोसीज्यूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और कोई प्रिंसिपल एग्जाम में सपोज आपको वाइवा अटेंड करते हो और कोई अदर ऑफिशियल एग्जाम्स में आप रिटन एग्जाम हो कि आप इंटरव्यू फेस करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेम परचेज प्रोसीज्यूर, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट परचेज। जो अमाउंट होता है वो बिलो ₹25,000। यदि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट इज बिलो ₹25,000, then the concerned department or ministry or subordinate offices of the departments, they can directly purchase from the registered suppliers available on GeM, but after checking quality of the goods and services, their specification and delivery time। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी टाइम, इसको चेक करना है। और कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा जा सकता है। मगर यहाँ पर जो अमाउंट है एस्टिमेटेड वैल्यू, व्हेन द एस्टिमेटेड वैल्यू इज लेस देन ₹25,000। एंड यहाँ पर याद रखना है डायरेक्ट परचेज। और आफ्टर चेकिंग क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, चेकिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो डिलीवरी टाइम, और देन लोएस्ट evaluated प्राइस। तो आफ्टर चेकिंग क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी टाइम, द सेलर हु सप्लाई द पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस एट लिस्ट प्राइस, देन उसी से ही प्रोक्योर किया जाएगा। फाइनली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू द सप्लायर और सेलर हु सप्लायर सेल द कमोडिटी और सर्विस एट लिस्ट प्राइस। क्लियर, ये डायरेक्ट परचेज। और यहां पर जो अमाउंट है बिलो ₹25,000। चलो अभी सेकेंड मेथड को चलेंगे। सेकेंड मेथड में अमाउंट चेंज हो गया, अबोव ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन 25,000 एंड अप टू 5 लाख, यहां पर जो सेकेंड मेथड है वो कंपैरिजन है। इसको L1 बाइंग कहा जाता है। ओके, कंपैरिजन एंड अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड L1 बाइंग। सो यहां पर एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, एटलीस्ट मिनिमम 3 सप्लायर्स शुड बी टेकन फ्रॉम द जेम पोर्टल। मिनिमम 3 सप्लायर्स, उससे ज्यादा लिया जा सकता है और मिनिमम 3 होगा। और क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड, इसको चेक किया जाएगा। अगेन क्वालिटी ऑफ द goods and services, their specification and delivery period must be checked properly. Then award of contract given to the supplier who charge least price। तो यहाँ पर ऑलरेडी हैव रिटन अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लोएस्ट प्राइस सप्लायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड जो कंपैरिजन है, अगेन अमाउंट आ गया मोर देन 25,000 एंड अप टू 5 लाख। और ये जो कंपैरिजन है अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड, पॉपुलरली कॉल्ड L1 बाइंग। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स should be selected from the GeM portal. Then thoroughly check the quality of the goods and services, their specification and delivery period. Then award of contract given to the lowest price charge supplier। ये सेकेंड मेथड है। चलो थर्ड मेथड को देखेंगे। थर्ड मेथड में ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस।
थर्ड मेथड अमाउंट सेम अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 lakhs। ओके, जो रेंज है वही सेम है, अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 lakhs। ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस। In this process, at least 3 suppliers or manufacturers or bidders should be selected. At least 3 suppliers or original equipment manufacturers or bidders should be selected. तो हम जानते हैं कि बिडिंग प्रोसेस में simultaneously 2 bids submitted. One is the technical bid and another one is the financial bid. Technical bid consists of terms and conditions and technical details. Technical bid consists of technical details and basically terms and conditions, commercial terms and conditions. And technical bid is very important one for complex machine tools and equipments. A financial bid basically related to the financial quotations, price schedule, price quotations or price schedule. तो साइमल्टेनियसली 2 bids सबमिटेड, और यहां पर जो जेम पोर्टल के ऊपर हम इसको बोले ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस। तो इन दिस केस अमाउंट सेम अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 lakhs। एटलीस्ट 3 bidders शुड बी सिलेक्टेड, मिनिमम 3 bidders शुड बी सिलेक्टेड। फर्स्ट देयर टेक्निकल बिड्स एवेल्युएटेड बाय द कॉम्पिटेंट कमिटी और अथॉरिटी। यदि कमिटी बनता है तो कमिटी एवेल्युएट करेगा टेक्निकल बिड्स। फर्स्ट टेक्निकल बिड्स शुड बी एवेल्युएटेड बाय द कॉम्पिटेंट कमिटी और अथॉरिटी। क्लियर? सो यहां पर एक मिनिमम स्कोर होता है, क्वालिफाइंग स्कोर। नेक्स्ट देखेंगे, दोज हु गॉट मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर। So concerned committee or authority evaluate properly the technical bids of the bidders. Those who got minimum qualifying score, those who got minimum technical qualifying score, their response accepted and others rejected. So ऐसा नहीं है कि सभी का टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली टेक्निकल बिड्स में टेक्निकल डिटेल्स होता है और कुछ कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो जो कंसर्न कमिटी है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो टेक्निकल बिड्स को प्रॉपरली एवेल्युएट करता है, और जिन बिडर्स को मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर नहीं मिलता है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जिनको मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर मिलता है उनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है उनका रिस्पॉन्स को। Same thing I have written, those who got minimum qualifying score, their response accepted and others rejected. Right? Next one, the technical bids of those bidders finally accepted, they are called the selected bidders, क्योंकि उनका टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया तो उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा और उनका जो प्राइस कोटेशंस को एवेल्युएट किया जाएगा। तो फाइनेंशियल बिड्स ऑफ सिलेक्टेड बिडर्स ओपन, एवेल्युएटेड एंड रैंकिंग बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जिनका टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया, जिनको मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर मिला, उनका रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर दिया गया, उनका फाइनेंशियल बिड्स को ओपन कर दिया जाएगा और प्राइस कोटेशंस को एवेल्युएट किया जाएगा और उनको रैंक दे दिया जाएगा बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और जब प्राइस कोटेशंस को एवेल्युएट किया जाएगा व प्राइस शेड्यूल को, बेसिकली फाइनेंशियल बिड्स कंटेन प्राइस कोटेशंस और प्राइस शेड्यूल, और उनका प्राइस कोटेशंस को एवेल्युएट किया जाएगा, जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसी को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ये बिडिंग प्रोसेस है, बहुत इजी है। तो यहां पर आपको याद रखना है अमाउंट सेम है, मोर देन 25,000 अप टू 5 लाख। नेक्स्ट वन, एटलीस्ट 3 bidders। फर्स्ट
their technical bids should be opened and evaluated by a committee if any committee is formed, or by competent authority, and those bidders got minimum technical qualifying score, they are finally selected, and finally their response accepted, and then their selected bidders financial bids should be opened, evaluated and ranked, और जिसका प्राइस शेड्यूल और प्राइस कोटेशन को एवेलुएट किया जाएगा, और जिसका प्राइस लोएस्ट होगा उसको आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड चलेंगे, ये एक फिफ्थ मेथड है। यहां पर अमाउंट अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, रिवर्स ऑक्शन टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेंज है अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख, इसमें भी रिवर्स ऑक्शन टूल भी आएगा। तो इसमें कंपैरिजन आ गया, L1 बाइंग, इसमें बिडिंग प्रोसेस आ गया, और इसमें रिवर्स ऑक्शन टूल में भी खरीदा जा सकता है। वही रेंज है, व्हेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स इज मोर देन ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख, इसको याद रखना है। अगेन रिवर्स ऑक्शन टूल ये कब अप्लाई होगा ना, जब लास्ट परचेज प्राइस और प्राइस इन ई कॉमर्स साइट and last purchase price in the website of concerned department is substantially more than within the above limit, RA is used for more competitive price। तो इसमें एक्चुअली जो जेम प्राइस है, यदि जेम प्राइस लास्ट परचेज प्राइस से ज्यादा होगा, कि जो ई कॉमर्स साइट में जो प्राइस है उससे ज्यादा होगा, और जो लास्ट परचेज प्राइस वेबसाइट में है उससे ज्यादा होगा, तब कंसर्न डिपार्टमेंट वो क्या करेगा, वो रिवर्स ऑक्शन को जाएगा, थोड़ा प्राइस कंपटीशन के लिए। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप याद रखिए, जब जेम का जो प्राइस है इट इज सब्सटेंशियली मोर देन द लास्ट परचेज प्राइस, और प्राइस इन ई कॉमर्स साइट एंड लास्ट परचेज प्राइस इन द वेबसाइट ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। तो इस केस में जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और एनी सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट वो क्या करेंगे कि एनी कंसर्न गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी वो क्या करेगा ना, रिवर्स ऑक्शन को जाएगा। रिवर्स ऑक्शन में कंपटीशन होता है, ओके। तो वो कंपटीशन के बाद गुड को प्रोक्योर करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली जो रेंज है अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख, 3 मेथड से। एक है जो कंपैरिजन L1 बाइंग, नेक्स्ट हो गया बिडिंग प्रोसेस, नेक्स्ट हो गया रिवर्स ऑक्शन। और रिवर्स ऑक्शन कब आएगा, जब प्राइस ऑफ जेम पोर्टल इज सब्सटेंशियली मोर देन द लास्ट परचेज प्राइस बाय LPP, और मोर देन द प्राइस इन ई कॉमर्स साइट, एंड ऑल्सो लास्ट परचेज प्राइस इन द वेबसाइट ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। ये केस में रिवर्स ऑक्शन टूल को यूज किया जाएगा, जिसमें थोड़ा प्राइस कंपटीशन होगा, एंड अल्टीमेटली इस मेथड से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर किया जाएगा। तो ये रिवर्स ऑक्शन टूल को हम पूरा डिस्कस करेंगे अभी इसी मेथड के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट वन, बेसिकली जो ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन RA बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन, इट इज अबव ₹5 लाख। ये तो रेंज हो गया, क्योंकि जो रेंज था मोर देन 25,000 अप टू 5 लाख, उसमें 3 मेथड्स है। एक है कंपैरिजन है, L1 बाइंग, और नेक्स्ट वन बिडिंग प्रोसेस, और थर्ड वन रिवर्स ऑक्शन। मगर जब अमाउंट आ जाएगा अबव ₹5 लाख, व्हेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन ₹5 लाख, and government procuring entity want to purchase goods and services from the GEM portal and estimated cost is above ₹5 lakh, then it is mandatory for the government procuring entity to procure the goods and services through online reverse auction। reverse auction यहाँ पर compulsory है जब estimated value more than 5 lakhs होगा। अच्छा, ये रिवर्स ऑक्शन को पूरा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी वही है, जो भी बिडर्स
रिवर्स ऑक्शन में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट उनका टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा। फर्स्ट टेक्निकल बिड्स ऑफ द बिडर्स आर इवैल्यूएटेड बाय द कॉम्पिटेंट कमिटी और अथॉरिटी। जो इनिशियल प्रोसेस है, जो बिडिंग प्रोसेस में इनिशियल प्रोसेस है, रिवर्स ऑक्शन टूल में भी सेम प्रोसेस है। तो फर्स्ट वन टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा, बिडर्स का टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा। यदि कमिटी बनाया गया है, वो कमिटी और अथॉरिटी वो टेक्निकल बिड्स को एवेलुएट करेंगे और एक मिनिमम स्कोर दे देंगे। जिन बिडर्स को क्वालिफाइंग स्कोर मिलेगा, दोज बिडर्स गट क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, देन देयर रिस्पॉन्स शुड बी एक्सेप्टेड। जिनको मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर मिलेगा, टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर मिलेगा, उनका रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट, दोज हु गट मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर देयर रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड एंड अदर्स रिजेक्टेड। जिनको मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर नहीं मिलेगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये टेक्निकल जो बिड्स का एवेल्युएशन हो गया, ओके, रिवर्स ऑक्शन टूल में। और ये जो प्रोसेस था वही बिडिंग प्रोसेस में भी वही प्रोसेस था। पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग है, अभी तो टेक्निकल बिड्स को एवेल्युएट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी हम दोज बिडर्स ऑलरेडी गॉट मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर, ऑलरेडी दे आर सिलेक्टेड। तो ये नहीं है कि आउट ऑफ द टेक्निकली सिलेक्टेड बिडर्स हुज प्राइस कोटेशन इज लीस्ट वन, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गिवन टू हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेक्निकली सिलेक्टेड बिडर्स हो गए, जिनका टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया, उनमें से जिस बिडर का लिस्ट प्राइस होगा उसको भी अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं दिया जाएगा। जैसे बिडिंग प्रोसेस में क्या होता था ना, वहां पर जो सिलेक्टेड बिडर्स आफ्टर एवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स, उनका प्राइस कोटेशन, इट मींस फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा और जिसका लिस्ट प्राइस होगा उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। मगर यहां पर आफ्टर एवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड बिडर्स आर देयर, मगर उनका यहां पर जो फाइनेंशियल बिड्स डाले हैं उनको कंपेयर करके जिसका लिस्ट प्राइस होगा उसको भी अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑक्शन होगा वो रिवर्स होगा। ओके, बिडिंग प्रोसेस में उनका प्राइस कोटेशन को ओपन करके और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, मगर यहां पर वही नहीं होगा। यहां पर टेक्निकल बिड्स के बाद जो बिडर्स सिलेक्टेड हो गए, ये नहीं है कि जिसका प्राइस कोटेशन को ओपन कर दिया जाएगा और जिसका लिस्ट प्राइस होगा उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। नो, यहां पर वो नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, और कंपटीशन के लिए अगेन कंपटीशन अमंग द सिलेक्टेड टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स वुड बी अकर्ड ऑन फाइनेंशियल बिड्स। और यहां पर और कंपटीशन होगा, जो जिनका टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया उनके बीच में और कंपटीशन होगा, इसलिए तो उसको रिवर्स ऑक्शन कहा जाता है। कैसे ना, विद इन स्पेसिफिक टाइम एंड डेट शुड बी गिवन टू देम टू सबमिट देयर कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल बिड्स। तो जब वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिए थे तब वो टेक्निकल बिड्स, फाइनेंशियल बिड्स दिए थे पहले, मगर वहां पर क्या होगा, टेक्निकल बिड्स में टेक्निकल बिड्स तो एवेल्युएट हो गए और जिनको मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर नहीं मिला उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जिनको टेक्निकली मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर मिला उनको एक्सेप्ट कर दिया गया। और वहां पर भी प्राइस कोटेशन को कंपेयर करके जिसका लोएस्ट प्राइस है उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। अगेन कंपटीशन के लिए, अगेन फर्दर कंपटीशन के लिए फिर उनको एक स्पेसिफिक टाइम और डेट के अंदर उनको फिर कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल बिड्स सबमिट करना है। विद इन स्पेसिफिक टाइम एंड डेट शुड बी गिवन टू देम टू सबमिट देयर कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल बिड्स। तो ये सेकेंड टाइम, पहले तो वो फाइनेंशियल बिड्स दिए थे, ओके, मगर वहां पर उनका प्राइस कोटेशन को कंपेयर करके जिसका लिस्ट प्राइस है उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मगर यहां पर क्या होगा, फिर और ज्यादा कंपटीशन के लिए फिर उनको टाइम दे दिया गया और स्पेसिफिक डेट दे दिया गया कि विद इन स्पेसिफिक टाइम एंड डेट, ओके, द सिलेक्टेड बिडर्स शुड बी सबमिटेड देयर कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल बिड्स। जो उनका फाइनेंशियल बिड्स, ये ओनली फाइनेंशियल बिड्स के लिए, अभी टेक्निकल बिड्स का और कुछ काम नहीं है। तो सेकेंड टाइम वो कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल बिड्स को सबमिट करेंगे। देन ऑन रेस्पेक्टिव डेट एंड टाइम देयर प्राइस कोटेशंस इवैल्यूएटेड एंड लीस्ट प्राइस बिडर गेटिंग द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
समझ में आ रहा है। तो इनिशियल प्रोसेस जो है बिडिंग प्रोसेस एंड रिवर्स ऑक्शन टूल में जो प्रोसेस सेम है, और वहां पर क्या है ना, टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स उनका प्राइस, उनका फाइनेंशियल बिड्स को ओपन कर दिया जाता है और प्राइस कोटेशंस को कंपेयर कर दिया जाता है, और जिसका लोएस्ट प्राइस होता है उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल बिड्स एवेलुएट हो जाएगा और जो टेक्निकली सिलेक्टेड बिडर्स है उनको और ज़्यादा कंपटीशन के लिए उनको और टाइम दिया जाएगा और डेट और टाइम दिया जाएगा स्पेसिफिक, और उसके अंदर उनको फिर बोला जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल बिड्स को सबमिट करो, उनका प्राइस कोटेशंस को वो सबमिट करेंगे, और फिर अल्टीमेटली वो सेकेंड टाइम जो प्राइस कोटेशंस फाइनेंशियल बिड्स वो सबमिट करेंगे, वो प्राइस कोटेशंस को कंपेयर करके फिर जो जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑक्शन। सपोज इनिशियली 6 बिडर्स पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन। जैसे हमारा अभी रिवर्स ऑक्शन टूल में एक कंसर्न गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी वांट टू प्रोक्यूर द गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज यहां पर 6 बिडर्स पार्टिसिपेट किए रिवर्स ऑक्शन, ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन में। तो जो बिडर्स का नाम दे दिया ABCDEF, क्लियर। फिर क्या हुआ, आफ्टर evaluation by the evaluation committee 4 bidders got minimum technical score and selected for further response। तो पहले तो टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा, तो 6 बिडर्स पार्टिसिपेट किए, 6 बिडर्स का टेक्निकल बिड्स ओपन हुआ, एवेल्युएशन कमिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 6 बिडर्स का टेक्निकल बिड्स को एवेल्युएट किया, और यहां पर जो इस एग्जांपल में आउट ऑफ 6 बिडर्स 4 बिडर्स गॉट मिनिमम टेक्निकल स्कोर, 4 बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिला एंड सिलेक्टेड फॉर फर्दर रेस्पॉन्स। तो जो 4 बिडर्स का टेक्निकल बिड को एक्सेप्ट किया गया वो A, B, D एंड F, ये चारों बिडर्स का टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया क्योंकि उनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिला, इनको मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर मिला, और दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे C एंड E, बिडर C एंड E को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ 4 सिलेक्टेड बिडर्स A हैज लिस्ट प्राइस कोटेशन। तो ये जो अभी जो 4 सिलेक्टेड बिडर्स हो गए तो वो साइमल्टेनियसली टेक्निकल बिड्स, फाइनेंशियल बिड्स सबमिट किए थे। अभी 4 सिलेक्टेड बिडर्स ओनली C एंड E को रिजेक्ट कर दिया गया। अभी A, B, D एंड F जो बिडर्स है उनको चूज कर दिया गया फर्दर रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो 4 बिडर्स पहले जो फाइनेंशियल कोटेशन दिए थे उसमें देखा गया कि बिडर A का लिस्ट प्राइस कोटेशन था, बिडर A का लिस्ट प्राइस कोटेशन था, मगर यहां पर बिडर A को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, बट A कुड नॉट गेट द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फर्दर कंपटीशन होगा, इसलिए तो रिवर्स ऑक्शन कहा जाता है। तो यहां पर एक्चुअली जब 4 बिडर्स का टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया और उनका प्राइस कोटेशंस को एवेलुएट किया गया, तब बिडर A का जो प्राइस था वो लिस्ट था, मगर उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया क्योंकि और ज्यादा कंपटीशन के लिए। ठीक है, यही है कंडक्टेड रिवर्स ऑक्शन फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइस, कंपटीशन फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइस। फिर क्या गया, again within specific time and date given to selected bidders A, B, D and F to submit their financial bids by price quotation। again specific time and date दे दिया गया, उसके अंदर उनको जो 4 सिलेक्टेड बिडर्स है जिनका टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया A, B, D एंड F, उनको बोल दिया गया कि आपका फाइनेंशियल बिड्स व न्यू प्राइस कोटेशन को सबमिट करो। पहले तो वो दे चुके थे फाइनेंशियल बिड्स, और उसके हिसाब से उनको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, और कंपटीशन के लिए उनको बोल दिया गया कि इसी स्पेसिफिक टाइम एंड डेट के अंदर आपका प्राइस कोटेशन को आप सबमिट करो, आपका फाइनेंशियल बिड्स को सबमिट करो। सबमिट करने के बाद, आफ्टर सबमिट करने के बाद एक स्पेसिफिक डेट में उनका फाइनेंशियल बिड्स को एवेलुएट किया गया, और जिसका लिस्ट प्राइस था उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बिडिंग प्रोसेस से।
तो अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू डी रादर देन ए। पहले जो प्राइस कोटेशन था ए का लिस्ट प्राइस था, पहले जब टेक्निकल बिड्स फाइनेंशियल बिड्स वो सबमिट किए थे तब ए का लिस्ट प्राइस था। यहां पर ए का भी आप देखा होगा कि ए का टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट किया गया, ए बी डी एंड एफ, सी एंड ई को रिजेक्ट कर दिया गया, उनका टेक्निकल बिड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। तो टेक्निकल बिड्स जिनका एक्सेप्ट हुआ वो ए, बिडर बी, बिडर डी एंड बिडर एफ। तो उस समय प्राइस कोटेशन में एक्चुअली बिडर ए का लिस्ट प्राइस था, मगर उसको आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया क्योंकि फर्दर कंपटीशन के लिए। फिर जो सेकेंड टाइम जो वो प्राइस कोटेशन दे दिए, जो 4 सिलेक्टेड बिडर्स ए बी डी एंड एफ, जो उनका फाइनेंशियल बिड्स को सबमिट किए और उनका प्राइस कोटेशन को एवेलुएट किया गया और प्राइस शेड्यूल को, उनका जो प्राइस कोटेशन को एवेलुएट किया गया, तब डी का जो प्राइस था वो लिस्ट था, तब अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डी को दे दिया गया। और पहले जो फाइनेंशियल बिड्स था उसमें ए का लिस्ट प्राइस था। तो बिडिंग प्रोसेस के हिसाब से ए को मिलना था, यदि बिडिंग प्रोसेस में जाएगा ए को मिलेगा। और अभी जो रिवर्स ऑक्शन आ गया और जो सेकेंड टाइम फिर जो ऑक्शन किया गया कि उनको फिर इन्फॉर्म किया गया कि आपका सेकेंड टाइम आप प्राइस कोटेशंस को सबमिट करो, कि आपका फाइनेंशियल बिड्स को सबमिट करो, ओनली फाइनेंशियल बिड को सबमिट करो सेकेंड टाइम, क्योंकि थोड़ा प्राइस कंपटीशन के लिए। तब जो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल में जो ए बी डी एंड एफ जो प्राइस कोटेशन सबमिट किए या जो फाइनेंशियल बिड सबमिट किए, तब कंपेयर करने से डी का जो प्राइस था वो लिस्ट था और अल्टीमेटली डी को अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये जो प्रोसीजर था पूरा प्रोसेस में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया था, थोड़ा लेंदी था, मगर यहाँ पर जो है जो परचेजिंग प्रोसीजर के ऊपर, वहाँ पर तो बहुत चीज़ में बताया था, यहाँ पर जो परचेजिंग प्रोसीजर है उसको मैं कंसाइज करके एक्सप्लेन किया। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, और एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन जेम पोर्टल अप टू 30 लाख, ये लिमिट जो है अप टू 30 लाख से, यदि कोई ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली जेम पोर्टल से प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसका जो लिमिट है अप टू 30 लाख से, राइट। तो माय फ्रेंड्स प्लीज, माय चैनल, यूट्यूब चैनल नेम इज असित गवर्नमेंट रूल गुरु, प्लीज अगेन असित गवर्नमेंट रूल गुरु, प्लीज subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So please see this video up to the last and definitely it would be very useful for you. So in description box also already I have given my Telegram channel link, please join it and you can avail all my videos. You can get, definitely you can get benefit and definitely it would be 100% success for you. So please my friends, subscribe my channel Asit Government Tool Guru. Thank you and namaskar.